حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا عمران علیہ السلام کی بیوی نے اولاد کے لیے دعا کی اور یہ عہد کیا کہ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اسے وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی۔ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا اور انہیں مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا مریم علیہ السلام کی پرورش سیدنا زکریہ علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ جب سیدنا مریم علیہ السلام کچھ بڑی ہو گئی تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی گئی جہاں وہ لوگوں کی نظر سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام جب ان سے ملنے جاتے تو ان کے سامنے بے موسمی پھل رکھے دیکھتے۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے کہ ایک دن سیدنا مریم علیہ السلام کسی کام کے لیے گھر سے نکلی اور بیت المقدس کی مشرقی جانب چلی گئی۔ اس وقت مسجد بالکل خالی تھی، گویا وہ بالکل تنہا تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے۔ سیدنا مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ سچا مسلمان خوف کے وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے کہا جو کہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے اور سیدہ مریم علیہ السلام ان کا فرشتہ ہونا نہ جانتی تھی، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں۔ اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا جبریل علیہ السلام کی زبانی فرمایا ہے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا جبریل علیہ السلام کی بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا بات تو اسی طرح ہے لیکن آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ کام اس پر احسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ آپ کے ہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا اور ایسا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں اور وہ بچہ اس کی قدرت کا نشان ہوگا۔ اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما چکا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف ایک پھونک ماری۔ اس پھونک کے مارنے کے بعد مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو گئی، جیسا کہ شادی شدہ عورت حاملہ ہوتی ہے۔ جب حمل کی علامت ظاہر ہو گئی تو سیدہ مریم علیہ السلام ہر ممکن حد تک لوگوں سے دور دور رہنے لگی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان پر برائی کا الزام لگائیں گے اور وہ اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہوئی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا تو وہ کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور میں لوگوں کی نظروں میں بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ جانتی تھی لوگ اب ان پر الزام لگائیں گے، انہیں جھٹلائیں گے۔ اگرچہ لوگوں کے نزدیک عبادت گزار اور پرہیزگار تھی، مسجد میں رہتی، نبوت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے آپ کی زبان پر موت کی خواہش کے الفاظ آ گئے۔ سیدہ مریم علیہ السلام اپنی پریشانی کے عالم میں تھی کہ انہیں ایک آواز سنائی دی غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، کھجوریں کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اسی آواز دینے والے نے کہا اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس طرح سیدہ مریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کے نیچے بچے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، پھر اسے اٹھا کر اپنی قوم کی طرف آئیں۔ جب ان لوگوں نے سیدنا مریم علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، تو نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی برا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، پھر تو یہ کام کیسے کر گزری؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور اشارے سے بتایا کہ میرا روزہ ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا تھا۔ پھر سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم لوگ جو مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو اس الزام کا جواب میرے اس بچے سے پوچھ لو۔ اس کے اشارے کو سمجھ کر وہ کہنے لگے تو ہم سے مذاق کرتی ہے، یہ بچہ بھلا کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچے نے بولنا شروع کر دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں بھی میں ہوں یعنی ہر جگہ بابرکت ہو، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی
کرنے واला बनाया है और उसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। कौम दूध पीते बच्चे की बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से उनकी बदगुमानी भी दूर हो गई। साथ ही कौम ने यह भी जान लिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि अपने वक्त पर बहुत ही अहम शख्सियत होंगे। यही नहीं, कौम ने माँ बेटे को अपने लिए खैर और बरकत का सबब समझना शुरू कर दिया। दूध पीते बच्चे का बोलना एक मौजज़ा था। इस मौजज़े की खबर हर तरफ फैल गई कि दूध पीता बच्चा बातें करता है। इस तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही से मशहूर हो गए। फिर ये खबर शाम के बादशाह तक भी पहुंची। वो काफर और जालिम था। उसने हुक्म दिया, जाओ बच्चे का पता करो और उसे कत्ल कर दो। ये खबर सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम तक भी आ पहुंची। शाम की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं और वो उनके बच्चे को कत्ल करना चाहते हैं। ये सुनते ही आपने बच्चे को उठाया और वहाँ से निकल खड़ी हुई। एक काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। आप उस काफिले में शामिल हो गई। इस तरह सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के साथ सराय सीना के किनारे पहुँच गयी। फिर मिस्र दाखिल हो गयी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र तक मिस्र ही में परवरिश पाते रहे। 13 साल की उम्र होने पर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि वापस बैतुल मुकद्दस चले जाएं। आप मिस्र से बैतुल मुकद्दस आ गए। फिर आप जवान हो गए। आप बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे और हमेशा गौर फिक्र करते रहते थे। उनके हम नौजवानों जिंदगी की खूबसूरती में उलझे हुए थे, लेकिन ये खूबसूरती उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकी। उस वक्त बनी इसराइल की हालत बहुत खराब थी। वो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हो चुके थे और सब के सब गुमराही में मुब्तला थे। उन ग्रोहों में से एक ग्रोह आखिरत का इनकार करने वाला था, दूसरा ग्रोह दीन की तालीमात का इनकार करता। यह ग्रोह ख्वाहिशात और लज्जतों में फंसा हुआ था। एक ग्रोह ऐसा था जिसने फितना फसाद के बावजूद खुद को दीन वालों के सुपुर्द कर रखा था। अगरचे उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को भी बदल दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनका ताल्लुक दीन वालों से था। उन सब पर माल की मोहब्बत गालिब आ गई थी। वो माल के दीवाने हो गए थे। सूद उनके लिए आम था। उन्होंने इस्लामी अहकाम में रद्दो बदल कर दिया था। अपनी तरफ से अहकाम गढ़ लिए थे। कुछ अहकाम में कमी कर दी थी और जिन अहकाम में बनी इसराइल की फजीलत थी उनको खत्म कर दिया था। और अपनी बातों से लोगों को वर्गलाने लगे ताकि लोग उन्हें नजर न्याज पेश करें, उन्हें माल दें, उन्हें जेवरात वगैरह दीन के नाम पर उन्हें दे दें। वो इस नजर न्याज को खुद ले लेते थे और इस तरह उनसे बहुत ज्यादा माल हासिल कर लेते। इन हालात में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अंजील देकर भेजा और हुक्म दिया, बनी इसराइल को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, उन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाएं ताकि वो हक को इख्तियार कर लें, फितना फसाद और जुल्म से रुक जाएं। चुनाचा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत शुरू की। आपने बनी इसराइल से कहा, ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। मैं उस चीज की तस्दीक करता हूँ जो तौरात से पहले थी और मैं एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा। उसका नाम अहमद होगा। अल्लाह ताला ने मौजज़ात के साथ आपकी मदद की, आपको वाज़िया निशानियाँ दिखाई ताकि लोग आपकी तस्दीक करें, ईमान ले आए। इन मौजज़ात में से एक मौजज़ा तो ये था कि आप अपने हाथ से किसी अंधे के चेहरे पर फेरते तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी बहनाई लौट आती। कोड़ में मुब्तला मरीज जिन्हें हकीमुल हजरात लाइलाज करार दे चुके थे, आप ऐसे मरीजों का इलाज कर देते थे। तीसरा ये, आप अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते। आप मिट्टी से एक परिंदा बनाते, फिर उसमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। आप बनी इसराइल को ये बता देते थे कि उन्होंने क्या खाया है, कि उन्होंने अपने घरों में कौन सी खुराक जिकिरा कर रखी है। अल्लाह ताला रोजे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ऐ ईसा बिन मरियम, मेरा नाम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालदा पर हुआ जब मैंने तुमको रूहुल कदस से ताईद दी। तुम लोगों से कलाम करते थे, खुद में भी और बड़ी उम्र में भी। और जब मैंने तुमको किताबो हिकमत की बातें और तुरात व अंजील की तालीम दी, और जब तुम मेरे हुक्म से गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिंदे की शक्ल होती है, फिर तुम उसके अंदर फूंक मार देते थे जिससे वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। और तुम मादरजात अंधे और कोहड़ के मरीज को भी मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे और तुम मुर्दों को निकाल कर मेरे हुक्म से खड़ा कर देते थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना तिब्बुल इलाज के अरूज का जमाना था। अल्लाह ताला ने आपको ऐसे मौजज़ात दिए जो महरे फन डॉक्टरों के पास मौजूद ना थी। आप ऐसे नबीना का इलाज भी करते थे जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता। एक मर्तबा एक हकीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक पैदाइशी अंधे और कोढ़ में मुब्तला एक आदमी को ले आया। उसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, इन दोनों मरीजों को अच्छा करके दिखाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोनों पर हाथ फेरा तो वो दोनों तंदुरुस्त हो गए,
मगर उसके बावजूद वो हकीम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया। कोई माहिर से माहिर तबीब और डॉक्टर भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा कोई भी तबीब और हकीम कब्र में पड़े हुए मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता था। जबकि आप मुर्दों को हुक्म देते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता था। इस हिसाब से पैगंबर के मौजज़े की सदाकत, उसको जाहिर करने की कुदरत का पता चलता है। लेकिन इन तमाम मौजज़ात के बावजूद और रोशन दलीलों के होते हुए भी बनी इसराइल में अक्सर लोग अपने कुफर पर डटे रहे। उन्होंने गुमराही और सरकशी को ना छोड़ा। बहुत कम लोग आप पर ईमान लाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों में से जो ईमान लाए एक ग्रोह को चुना। वो आपके हामी और मददगार थे। ये लोग हर वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। आप जहाँ भी जाते वो साथ होते। आप उन्हें वाइज़ो नसीहत करते। वो अपनी दीनी मालूमात के लिए आपसे सवालात करते रहते थे। उन लोगों को हवारी कहा जाता है। जिस तरह खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबी कहा जाता है। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा करते थे। उनकी तादाद 12 बयान की जाती है। एक रोज सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, तुम 30 दिन के रोजे रखो, इस तरह तुम्हें अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी। उन्होंने 1 माह तक रोजे रखे। जब 30 रोजे पूरे हो गए उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, आप दुआ करें अल्लाह ताला हम पर आसमान से दस्तरख्वान नाज़िल फरमा दे। ये सुनकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, ऐसे सवालात ना कहो, कहीं आजमाइश में ना पड़ जाओ। जवाब में वो बोले, हम चाहते हैं कि इस दस्तरख्वान से खूब खाएं, इस तरह हमारे दिल मुतमीन हो जाएंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि आप सच्चे हैं, फिर हम इस पर गवाह होंगे। उनका मतलब था कि दस्तरख्वान के आसमान से नाज़िल होते देखकर उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाएगा कि आप वाकई ही अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस तरह उनका ईमान मजबूत हो जाएगा। फिर वो लोग गवाही देंगे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। आपने बहुत कोशिश की कि वो इस बात की ख्वाहिश से बाज आ जाएं, ये मुतालबा ना करें, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। आकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। आपने 2 रकात नमाज अदा की। अल्लाह ताला से आजिज़ी और रोते हुए अर्ज की, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तरख्वान नाज़िल फरमा ताकि वो हमारे लिए भी एक खुशी और इत्मीनान का सबब बन जाए और उनके लिए भी जो हमसे पहले हैं, इसी तरह हमारे बाद आने वालों के लिए भी। और वो दस्तरख्वान आपकी तरफ से एक निशानी होगा। हमें रिज़्क अता फरमा और तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। आप उस वक्त तक दुआ करते रहे जब तक हवारियों ने दस्तरख्वान आसमान से उतरते ना देख लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। आकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर रुक गया। उसको एक कपड़े से ढांप दिया गया। आपने ये कहते हुए कपड़ा उठाया, अल्लाह के नाम के साथ जो बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। दस्तरख्वान मुख्तलिफ खानों से भरा हुआ था। आपने हवारियों और फकीरों और मस्कीनों को हुक्म दिया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं इस दस्तरख्वान से खाएं। उस वक्त उनकी तादाद 1300 थी। उन सब ने उस दस्तरख्वान से खाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इस दस्तरख्वान से गरीब और नादार लोग ही खाना खाएं, मालदार तंदुरुस्त और तवाना लोग इससे खाना ना खाएं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उन तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा दिया, लेकिन कुछ मालदार लोगों ने इस हुक्म की परवाह ना की। अल्लाह ताला ने इसकी सजा दी कि उन मालदार लोगों को बतौर सजा के सूर और बंदर बना दिया, जबकि मस्कीन बीमार लोगों की तमाम बीमारियां, मुसीबतें और आफात अल्लाह ताला ने दूर कर दी। इस तरह उन्होंने दामी अमराज से निजात हासिल कर ली। अब रोजाना दस्तरख्वान नाज़िल होता, वो उससे खाते, उससे खाना कम नहीं होता था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया था, कोई शख्स कल के लिए खाना जमा ना करे। उन्होंने इस हदायत पर अमल ना किया, खाना जमा करना शुरू कर दिया। इसकी सजा उन्हें ये मिली कि अल्लाह ताला ने दस्तरख्वान को उठा लिया, फिर नाज़िल ना किया। यह दस्तरख्वान 40 दिन तक रोज उतरता रहा था। दस्तरख्वान अतवार के रोज नाज़िल हुआ था, इसलिए नसारा के यहाँ अतवार को ईद का दिन मनाया जाता है, जिस तरह मुसलमान के यहाँ जुमे के दिन को समझा जाता है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग करते रहे। मुल्क शाम में इस वक्त रोमियों की बादशाहत थी। किसरे रूम की तरफ से वहाँ एक हाकम मुकर्रा था, उसका नाम हरदविस था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को साथ लेकर मुल्क शाम में वाइज़्ज़तो नसीहत करते और उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते। इसके साथ साथ इनके ईमान को कामिल और मजबूत बनाने के लिए अल्लाह के हुक्म से मौजज़े भी दिखाते। इस दावत व तबलीग से बहुत से लोग मुसलमान हो जाते। यहूदी इस तरह लोगों को मुसलमान होने से बहुत परेशान हो गए। वो आप अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे। हसद जब हद से बढ़ गया तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दिन के वक्त मस्जिद अक्सा में आकर नसीहत फरमा रहे थे। अपने हवारियों और ईमान लाने वाले और दूसरे लोगों
लोगों से फरमाते कि वो दीन जो मैं लेके आया हूँ या मुझसे पहले अंबिया इकराम लेकर आए हैं उन पर कायम रहना, और मेरे बाद आखिरी नबी आने वाला है उनकी भी पैरवी करना। आप अलैहिस्सलाम इसकी ताकीद भी बार बार फरमाया करते थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में एक शख्स यहूदा भी था। एक रोज उसके दिल में भी लालच आया और वो यहूदियों के पास चला गया। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बना रहे थे। यहूदा ने उनसे कहा, मैं मसीह का पता बता सकता हूँ अगर तुम मेरी मुट्ठी गर्म करो। यहूदा की इस बात का मतलब ये था कि वो लोग इसे कुछ पैसे दे। यहूदियों ने इसको 30 सोने के सिक्के रिश्वत के तौर पर दिए। यहूदा इन सिक्कों को लेकर बहुत खुश हुआ और इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता उन लोगों को बता दिया। इस तरह यहूदियों की एक जमात आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए उस पहाड़ी पर पहुंच गई जिस पर आप अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त एक मकान में अपने हवारियों के साथ मौजूद थे। यहूदा भी वहाँ मौजूद था। जैसे ही यहूदी आपके मकान में दाखिल हुए, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और यहूदा की शक्ल तब्दील कर दी। यहूदा की शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई। यहूदी इसकी शक्ल देखकर धोखा खा गए। यहूदा ही ईसा अलैहिस्सलाम है, इसलिए उसको गिरफ्तार कर कर ले गए। यहूदा शोर मचाने लगा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जिसने तुम्हें इनका पता बताया था। मगर यहूदियों ने इसकी एक ना सुनी और इसे लेकर अपने बादशाह के सामने पेश किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। बादशाह ने उनकी बातें सुनकर फांसी का हुक्म दे दिया। यहूदियों ने यहूदा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर फांसी दे दी। यूं यहूदा की लालच उसे मौत के घाट तक ले गई और उसको मिलने वाले 30 सोने के सिक्के उसके किसी काम न आए। इस बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और इन यहूद के ये कहने की वजह से कि हमने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था। अल्लाह के वाकया ये है कि ना तो इन्हें यहूद ने कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि इन पर वाकये के हकीकत मशकूक यानी शक वाली हो गई। और जो लोग यानी यहूद और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो इसके मुतल्लिक शक में पड़े हुए हैं। इन इख्तलाफात करने वालों के पास सुआए मंसूब और सुनी सुनाई बातों की पैरवी करने के और कोई सही इल्म नहीं है। और यहूद ने यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत और बड़ी हिकमत वाले हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद लोग 3 ग्रोहों में बट गए। एक ग्रोह वो था जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह समझते थे। दूसरे ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। तीसरे ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। पहले 2 ग्रोह काफिर और मुशरक हैं, तीसरा ग्रोह मोमिन का है। अल्लाह ताला ने आपको आसमान पर उठा लिया। अब आप क़यामत के करीब आसमान से दुनिया में नाज़िल होंगे, दिजाल से लड़ेंगे। दिजाल आखिरी जमाने में जाहिर होगा और रब होने का दावा करेगा। उसके साथ बेशुमार लोग होंगे। बहुत से कमजोर ईमान वाले उसके मकर और फरेब से मुतासर होकर उसको रब मान लेंगे और उसके साथ मिल जाएंगे, लेकिन मजबूत ईमान वाले उसको झूठा और कज्जाब कहेंगे और उसको रब मानने से इनकार कर देंगे, जिस पर दिजाल उनको कत्ल कर देगा। इस हालात में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाज़िल होंगे। आप दिजाल को कत्ल कर देंगे। इस तरह मुसलमानों को काफिरों पर गलबा हासिल होगा। आप अदलो इंसाफ कायम करेंगे, जुल्म को मिटा देंगे, सलीब को तोड़ देंगे यानी ईसाइयत को खत्म कर देंगे। इस्लाम के अलावा वो बाकी तमाम दीनों को बातिल करार देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से लड़ेंगे और मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। यहूदी बचने के लिए पत्थर या दरख्त की ओंठ में पनाह लेंगे तो वो पत्थर और दरख्त पुकार कर कहेंगे, ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह के बंदो, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इधर इसे आकर कत्ल कर दे। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमा देगा। ये उस वक्त होगा जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और यहूदी लोग दिजाल के लश्कर में शामिल होंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दिजाल को अपने नेज़े की अनी के साथ कत्ल कर देंगे और मुसलमानों को दिजाल के कत्ल की खबर देंगे। ये बतौर निशानी दिजाल के खून से आलूदा नेज़े की अनी भी उन्हें दिखाएंगे। उसके बाद तमाम लोग मुसलमान हो जाएंगे। फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होगी। मुसलमान आपका जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें दफन कर देंगे।